Hello students, my name is Ajit Pathak and welcome to the Royal Group of College Godawal online classes। आज ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਉਸਦਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਲਾਅ ਆਫ ਡਿਮਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨਲਿਟੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਲਾਅ ਆਫ ਡਿਮਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨਲਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਲਾਅ ਆਫ ਡਿਮਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨਲਿਟੀ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸਦੀ मीनिंग ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨਸ ਉਸਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸਦੀ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਕੇਸਿਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਲਾਅ ਆਫ ਡਿਮਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਕੋਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਇਕੋਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਪਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਾਅ ਆਫ ਡਿਮਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨਲਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਮਾਰਜਿਨਲਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਵਗੈਰਾ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੈਨ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਾਰਡੀਨਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਤੇ ਆਰਡੀਨਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਕਾਰਡੀਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੋ ਲਾਅਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਲਾਅ ਆਫ ਡਿਮਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਲਾਅ ਆਫ ਇਕੁਈ ਮਾਰਜਿਨਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਲਾਅ ਆਫ ਡਿਮਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨਲਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲਾਅ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨਲਿਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੈਨ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਅ ਆਫ ਡਿਮਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨਲਿਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ? ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ। ਕਿਸ ਦੀ? ਲਾਅ ਆਫ ਡਿਮਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਾਅ ਆਫ ਡਿਮਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨਲਿਟੀ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੈਰਾਈਟੀ ਇਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੈਰਾਈਟੀ in production and consumption। ਹੁਣ ਵੈਰਾਈਟੀ ਇਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਲਾਅ ਆਫ ਡਿਮਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨਲਿਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੋਰ ਐਂਡ ਮੋਰ ਯੂਨਿਟਸ ਆਫ ਕਮੋਡਿਟੀ ਆਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਡ, ਐਵਰੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਯੂਨਿਟ ਵਾਈਡਸ ਲੈਸਰ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਮਿਲੂਗੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਘੱਟ ਮਿਲੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ ਦਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਇਜ਼ ਫੋਰਸਡ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਅਨਦਰ ਕਮੋਡਿਟੀ। ਸੋ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਮੋਡਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ? ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਡਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ? ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਘੱਟ ਜੂਗੀ? ਮਾਰਜਿਨ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਜਾਂ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰੂਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਮੋਡਿਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਜੂਗਾ। ठीक है, मतलब जो है वैरायटी ऑफ कॉमोडिटी की है कंज्यूम करूँगा, अलग अलग कॉमोडिटी ਨੂੰ कंज्यूम करूँगा ताकि उन्हें ਜਿਹੜੀ है पूरी सैटिस्फैक्शन मिले। सो उस तरीके नाल जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर ਨੂੰ ਕੀ करना चाहिए है,
प्रोड्यूसर की है जो वैरायटी ऑफ कॉमोडिटीज़ है उन्होंने प्रोड्यूस करूँगा, ठीक है। वैरायटी ऑफ कॉमोडिटीज़ प्रोड्यूस्ड, ठीक है जी। इस तरीके नाल जिहड़ा हैगा ये लॉ जिहड़ा आपां नूं हेल्प करदा। उस तो बाद फिर हैगा सैकेंड जो पॉइंट आ जाता है उस दे विच आपां गल करदे हां हेल्पफुल इन सोशलिज्म, ठीक है। किहदे विच हेल्प करदा है? बेसिस ऑफ सोशलिज्म, बेसिस ऑफ सोशलिज्म, ठीक है जी। हुण बेसिस ऑफ सोशलिज्म दे विच आपां जो है आपां पढ़दे हां। हुण इस केस दे विच की हुंदा है? बेसिस ऑफ सोशलिज्म दे विच की है? आपां नूं पता है कि जिहड़ा सोशलिज्म है ये इस दे विच की हुंदा है? एक इकनॉमिक सिस्टम हुंदा है, ठीक है, जिहदे विच जो इनकम है ते वैल्थ है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जाती है किहदे विच? लोकां दे विच, ठीक है। मतलब इस सिचुएशन दे विच जो पीपल ने, ठीक है, उन्हां दे विच की है जो इनकम है, ठीक है, जो इनकम है या वैल्थ है वो की है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है जी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। सो इस दे विच की है? आपां नूं पता है कि जिहड़े रिच क्लास के लोग होंदे है, ठीक है, जिहड़े रिच पीपल ने जां जो रिच क्लास है, सो दे इंजॉय हाई इनकम, ठीक है, हाई इनकम लैवल उन्हां कोल की है? ज़्यादा इनकम होंदी है, हायर इनकम होंदी है, ठीक है। उस तो बाद इस करके उन्हां दी जिहड़ी यूटिलिटी है, यूटिलिटी ऑफ इनकम है, ठीक है, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ इनकम, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ इनकम की है? लैस होंदी है, ठीक है, की है? घट होंदी है। उस तो बाद अगर आप दूसरी गल करिए, अगर आप गल करिए पूअर पीपल दी, पूअर क्लास दी, तो वो जिहड़े गरीब लोग ने उन्हां दी जिहड़ी यूटिलिटी है, ठीक है, किस नूं? इनकम दी जो यूटिलिटी है वो की है? हाई होगी, हाई यूटिलिटी होगी, हाई यूटिलिटी ऑफ इनकम, उन्हां दी की है? जिहड़ी यूटिलिटी है वो की ज़्यादा होगी, ठीक है, कंपैरेटिवली किहदे? जिहड़े रिच क्लास है। सो इस सिचुएशन दे विच की कीता जाऊगा कि जिहड़ी अमीर लोगों तो पैसा लैके गरीबां दे विच वंडिया जाऊगा। मतलब कि ये कि टैक्सेस ने जिहड़े वो रिच क्लास दे उपर लगा के, ठीक है, की कीता जावे? उहनूं एक्सपेंडिचर कीता जावे किहदे उपर? गरीबां दे उपर, जो गरीब क्लास जो मतलब पूअर पीपल ने उन्होंने दिता जावे, ताकि जिहड़ा हैगा इस तरीके नाल जो सोशलिज्म है, सोशलिज्म दे विच की हुंदा है कि आपां जो भी मतलब जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुंदा पीपल दे विच, ठीक है। सो उस चीज़ नूं जिहड़ा हैगा सैटिस्फाई किया जा सके, ठीक है जी। उस तो बाद फिर आपां जिहड़ा हैगा थर्ड आ जांदा प्रोग्रैसिव टैक्सेशन। थर्ड दे विच आपां की गल करदे हां प्रोग्रैसिव टैक्सेशन, प्रोग्रैसिव टैक्सेशन। हुण जिहड़ा प्रोग्रैसिव टैक्सेशन है, प्रोग्रैसिव टैक्सेशन सिस्टम दे विच की हुंदा है कि आपां नूं पता है कि इकोनॉमी दे विच की है कि जिहड़ा हैगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी की कहंदी है, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਿਚ ਕਲਾਸ ਦੀ, ਰਿਚ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਜਨਲਿਟੀ ਆਫ ਮਨੀ ਹੈ ਰਿਚ ਪੀਪਲ ਦੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਰਹੂਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ? It is helpful for finance minister, finance minister,
फाइनैंस मिनिस्टर दे ਲਈ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। किस तरीके नाल हेल्पफुल है, क्योंकि आपां नूं पता है कि जिहड़े हैगे है, देखो सब तो पहला प्रोग्रैसिव टैक्सेशन के बारे समझो। प्रोग्रैसिव टैक्सेशन की होंदी है? प्रोग्रैसिव टैक्सेशन का मतलब की होंदा, सपोज करो आपां एक इस साइड ते आपां ला लीए टैक्स रेट की गल कर ली, इस साइड ते आपां गल कर ली इनकम की। ठीक है, इनकम दे विच की है कि इहदे विच जिहड़ा प्रोग्रैसिव टैक्सेशन सिस्टम हुंदा है, इहदे विच हुंदा है कि जिवें जिवें इनकम पीपल दी जिहड़ी या इनकम जिहड़ी हैगी है वो की इनक्रीज़ करूगी, जिहड़ा टैक्स रेट है वो भी की है इनक्रीज़ करदा रहिंदा है। जिवें जिवें इनकम इनक्रीज़ करूगी उस तरीके नाल जिहड़ा टैक्स रेट है वो भी की है इनक्रीज़ करदा। सो इहदे विच जिहड़ा ग्राफ है वो पॉजिटिव बनदा है। ठीक है, इहनूं आपां की कह दिंदे आ प्रोग्रैसिव। क्यों? क्योंकि जिमें जिमें इनकम वध रही है उस तरीके नाल जिहड़ा टैक्स रेट है वो भी की है वध रहा है। ठीक है, सो इस तरीके दे नाल जिहड़ा हैगा की हुंदा है कि आपां इहदे विच हुण आपां नूं हैल्प किवें करदा है टैक्सेशन सिस्टम दे विच कि जिहड़े फाइनांस मिनिस्टर हुंदे उन्होंने पता हुंदा कि जिहड़े लोकां दे कोले पैसा ज़्यादा है उन्हां दे कोले जिहड़ी मनी दी जो यूटिलिटी है वो घट होगी। सो दैट्स वाई की है जिवें जिवें इनकम वधदी है पीपल्स दे कोले, लोकां दे कोले, उन्हां दी जिहड़ी हैगी है मार्जिन यूटिलिटी ऑफ दैट मनी इज़ गोइंग टू बी डिक्रीज विद द इनक्रीज ऑफ इनकम। सो वो की करते हैं, उन्होंने की करना चाहिए। सो उन्होंने जोड़ा है टैक्सेशन अगर आप ज़्यादा लगाइए तो वह बैटर रहूगा एक इकोनॉमी के लिए, रैदर दैन आप जो पुअर पीपल ने उन्होंने उपर की करिए टैक्सेशन सिस्टम का बर्डन पाइए। ठीक है, सो पुअर पीपल के उपर जो है बर्डन है वो घट होना चाहिए, जो रिच क्लास है उसके उपर जो बर्डन है वो ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है जी, सो इस तरीके नाल जिहड़ा हैगा प्रोग्रैसिव टैक्सेशन नूं ये हैल्प करदा है। आपां जिहड़ा हैगा थोड़ा जिहा इहदे विच पढ़ लैंदे आ कि प्रोग्रैसिव टैक्सेशन तो बिना होर किहड़े-किहड़े टैक्सेशन सिस्टम हुंदे आ। एक हुंदा है रैग्रैसिव जो टैक्सेशन सिस्टम है उहदे विच की हुंदा है कि जिवें जिवें अपनी जिहड़ी इनकम इनक्रीज़ करदी है, एज इनकम इनक्रीज़ द टैक्स रेट इज़ गोइंग टू बी डिक्रीज़, जिहड़ा टैक्स रेट है वो की है घटदा है। ठीक है, अगर थोड़ी सपोज करो थोड़ी इनकम हैगी है 1 लाख रुपया, 1 लाख है तो तुहानूं पऊगा सपोज करो टैक्स रेट पै रहा है 20%। अगर तुहाडी 1 करोड़ होगी तो तुहानूं टैक्स रेट पै रहा है 5%। सो मतलब कि जिमें जिमें इनकम इनक्रीज़ कर रही है उस तरीके दे नाल जिहड़ा हैगा टैक्स रेट घट जाता है। हुण ये रैग्रैसिव का जिहड़ा हैगा दिक्कत की है कि इहदे विच जिहड़ा ज़्यादा बर्डन है वो पुअर क्लास के उपर ज़्यादा बर्डन पैंदा टैक्स का, ते रिच क्लास के उपर जिहड़ा टैक्स का बर्डन है वो की है घट पैंदा। एक हुंदा प्रपोर्शनल टैक्सेशन सिस्टम हुंदा है। इहदे विच की हुंदा प्रपोर्शनल दे विच की हुंदा कि जिस तरीके दे नाल इनकम वधदी जाऊगी, इनकम तुहाडी किन्नी भी होवे, ठीक है, वध होवे घट होवे, तुहानूं जिहड़ा टैक्स रेट है वो सेम देना पऊगा। जो टैक्स रेट है वो की है सेम रहिंदा है। ठीक है, मतलब तुहाडी इनकम अगर 50,000 है तुहानूं टैक्स फिर भी 10% पे करना है। अगर तुहाडी 50 करोड़ होगी तुहानूं टैक्स फिर भी 10% ही पे करना है। इस सिचुएशन दे विच जिहड़ा टैक्स रेट है वो की है सेम रहिंदा है। ठीक है, इधर ला लिया आपां इनकम, समझ गए। सो ये जिहड़ा हैगा ये टैक्सेशन सिस्टम दे विच जिहड़ा हैगा हेल्प करदा आपां नूं। है 4th पॉइंट, उस दे विच आपां पढ़दे हां बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजम्पशन। जाना जाता है बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजम्पशन। बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजम्पशन दे विच की जांदा है, देखो बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजम्पशन दे विच जिहड़ी डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी है ये आपां नूं हेल्प करदी है। ठीक है, इहदे विच की है कि आपां नूं पता है कि जिहड़ा एक कंज्यूमर है वो सारी दी सारी इनकम किसी एक कमोडिटी के उपर जिहड़ा हैगा वो एक्सपेंडिचर नहीं करता। ठीक है, तो फिर की है कि जदों भी कोई कंज्यूमर है वो अपनी जो एक्सपेंडिचर्स करता है, ठीक है, वो कुछ इस तरीके नाल करूँगा ताकि उन्होंने जिहड़ी सैटिस्फैक्शन है वो मैक्सीमम मिल सके। ठीक है, किस तरीके नाल करूँगा ताकि वो जिहड़ी मैक्सीमम सैटिस्फैक्शन है वो उसनूं मिल सके। क्यों? क्योंकि आपां नूं पता है कि अगर वो सारी दी सारी इनकम एक चीज़ के उपर अगर वो खर्च कर दूगा, एक चीज़ के उपर अगर वो जिहड़ा हैगा सारी दी सारी इनकम खर्च करूँगा तो उहदे नाल की होऊगा कि उहदी जिहड़ी मार्जिनलिटी है
मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन अगर करना चाहता हो, ठीक है, तो ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ है कि जो वो मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन चाहता है तो अगर वो किसी एक चीज़ के उपर अगर वो सारा का सारा जो है एक्सपेंडिचर करूँगा तो उन्होंने जी यूटिलिटी है वो की मार्जिन यूटिलिटी है वो की घटती जाऊगी, वो की लैस हो जूगी, ठीक है। सो की करूँगा मल्टीपल कॉमोडिटीज़ के उपर की है खर्च करूँगा, ठीक है। मल्टीपल कॉमोडिटीज़ के उत्ते क्यों करूँगा, ताकि उन्होंने जी यूटिलिटी है वो की है मैक्सीमम मिल सके, यूटिलिटी की मिल सके मैक्सीमम, ठीक है जी। सो इस तरीके के नाल जिहड़ा हैगा आपां नूं जो है डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी है वो हेल्प करती है कंजम्पशन दे विच, ठीक है। उस तो बाद फिर नैक्सट जिहड़ा हैगा वो हैगा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, सॉरी प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइस डिटर्मिनेशन। प्राइस डिटर्मिनेशन दे विच जो मार्जिनलिटी है वो आपां नूं हेल्प करती है। वो किस तरीके दे नाल करदी है, देखो आपां नूं पता है कि जदों भी आपां जिहड़ा हैगा किसी इकोनमी दे विच गल करदे हां किसी इंडिविजुअल दी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी आपां नूं की कहंदी है, इहदे विच आपां नूं एक चीज़ का पता लगदा ना कि जिहड़ा इंडिविजुअल है अगर किसी चीज़ नूं ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है तो उसनूं जिहड़ी सैटिस्फैक्शन है वो घट मिलदी है, ठीक है। उस तो बाद की है कि जिहड़ा कोई भी कॉमोडिटी है उसका जिहड़ा प्राइस है वो आपां डिटरमाइन करदे किस दे द्वारा, डिमांड ते सप्लाई नाल, कॉमोडिटी दी डिमांड एंड सप्लाई, उसकी सप्लाई, ठीक है। वो ही आपको पता लगता कि किसी चीज़ का जो प्राइस है वो कितना होगा। बट जोड़ा है जी डिमांड है वो डिपेंड किते करती है, किसी इंडिविजुअल की जी डिमांड है वो डिपेंड किते करती है, वो डिपेंड करती है मार्जिनल यूटिलिटी से, मार्जिन यूटिलिटी के उपर डिपेंड करती है, ठीक है। अगर कंज्यूमर चाहता है किसी चीज़ को ज़्यादा खरीदना, वो अगर या कोई प्रोड्यूसर है अगर वो चाहता है कि अपनी कॉमोडिटी को ज़्यादा तो ज़्यादा की करे सैल करे, ठीक है, जो सेल्स ने उन्होंने की करे वो मैक्सीमाइज करे, ठीक है। तो उस सिचुएशन दे विच वो अगर अपनी सेल्स ने उन्होंने मैक्सीमाइज करना चाहता है या अगर वो अपने सैलिंग्स ने उन्होंने मैक्सीमाइज करना चाहता है, इन दैट केस उन्होंने चाहिए कि वो जोड़े प्राइसिस ने वो की है घट रखे, प्राइस की रखे घट, ठीक है, प्राइसिस नूं लोअर रखें। दैन फिर की होगा, इहदे नाल की होगा कि जिहड़ी क्वांटिटी ऑफ कॉमोडिटी है वो की है इनक्रीज़ कर जूगी, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि मार्जिन यूटिलिटी जिवें भी आप क्वांटिटी ऑफ कॉमोडिटी इनक्रीज़ करते हैं मार्जिन यूटिलिटी की है डिक्रीज़ कर जाती है, ठीक है। उस तो बाद फिर जिहड़ा नैक्सट है सिक्स्थ, उस तो उहदे विच आपां गल करते हैं एडवांटेज टू कंज्यूमर, एडवांटेज टू कंज्यूमर। हुण जो मार्जिन यूटिलिटी है यह कंज्यूमर किस तरीके दे नाल हेल्प करती है, क्योंकि आपां नूं पता है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी है, ठीक है, ये हर एक तरीके दे नाल जो कंज्यूमर्स नूं हेल्प करती है। इस लॉ के अकॉर्डिंग की है कि जिहड़ा कंज्यूमर है वो हमेशा चाहता है कि जिहड़ी उहदी जो सैटिस्फैक्शन है वो की है मैक्सीमाइज हो, ठीक है, सैटिस्फैक्शन है जिहड़ी कंज्यूमर नूं जो मिलती है वो की है मैक्सीमम होवे, ठीक है जी। तो मैक्सीमम सैटिस्फैक्शन जिहड़ी हैगी है अगर वो चाहता है, ठीक है, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਜਨ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਤੋਂ ਜੋ ਉਹ ਮਾਰਜਨ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਜੋ ਗੈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਵੈਲਿਊ ਇਨ ਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਵੈਲਿਊ ਇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ। डिफरेंस between value in use and between difference between value in use and value in exchange। ਹੁਣੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਵੈਲਿਊ ਇਨ ਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਵੈਲਿਊ ਇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਡਮ ਸਮਿਥ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨ ਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਵੈਲਿਊ ਇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਡਾਇਮੰਡ ਵਾਟਰ ਪੈਰਾਡੌਕਸ। ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਡਾਇਮੰਡ ਵਾਟਰ ਪੈਰਾਡੌਕਸ।
ਡਾਇਮੰਡ ਵਾਟਰ ਪੈਰਾਡੌਕਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਡਾਇਮੰਡ ਵਾਟਰ ਪੈਰਾਡੌਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਜਨਿਲਿਟੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੋਊਗੀ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਵਾਟਰ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਵਾਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਮਤਲਬ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ ਟੂ ਲਿਵ ਵਿਦਾਊਟ ਵਾਟਰ। ठीक है, बट अगर आप दूसरी साइड के उपर अगर आप गल करिए डायमंड की, डायमंड इज़ नॉट एज मच यूजफुल एज वाटर। ठीक है, जिन्ना अपने वास्ते वाटर जरूरी है डायमंड उन्ना अपने लिए जरूरी नहीं हैगा। ठीक है, फिर भी जिहड़ा हैगा डायमंड का जो प्राइस है वो की है ज़्यादा है। ठीक है, प्राइस की है हाई है, और जिहड़ा वाटर है उसका प्राइस की है लो है, ईवन फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, लो है, ईवन फ्री भी है पानी किते ना किते। ये क्यों है? ठीक है, क्योंकि वैल्यू इन यूज़ एंड वैल्यू इन एक्सचेंज की गल कर रहे हैं ना। यूज़ दे विच वाटर ज़्यादा वधिया है, बट अगर एक्सचेंज की गल करिए तो डायमंड का प्राइस ज़्यादा है। होना किहदा चाहिदा है? वाटर का। हुण इहनूं सॉल्व किहने कीता सीगा? इहनूं सॉल्व कीता सी विद द हैल्प ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। मार्जिन यूटिलिटी की हैल्प के नाल आपां की कीता, इहनूं सॉल्व कीता। किवें कीता? क्योंकि आपां नूं पता है कि कोई चीज़ अपने कोल जिन्नी ज़्यादा मात्रा दे विच अवेलेबल होवे, ठीक है, जिन्नी उहदी क्वांटिटी है वो ज़्यादा होवे, उहदी यूटिलिटी उन्नी ज़्यादा घट जांदी है। हुण आपां नूं पता है कि जिहड़ा वाटर है उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सो उहदा जिहड़ा प्राइस है वो की है लो है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्यों है? क्योंकि ये जी है ज़्यादा मात्रा के अपने को की है अवेलेबल है। बट जो डायमंड है ये प्रीशियस है, ये की है कि अपने को है एक तरीके स्केयर्स के आ जाता है, स्केयर्स बीन्स के आ जाता है, बहुत ज़्यादा जो है दुर्लभ है ये। ठीक है, ये की है दुर्लभ है, इस वजह करके की है इसका जो प्राइस है वो की है ज़्यादा है। ठीक है, एंड ये यूटिलिटी भी इस वजह करके ज़्यादा है क्योंकि ये जी क्वांटिटी है वो की है घट है, क्वांटिटी लैस है अवेलेबल। ठीक है, घट क्वांटिटी की है अवेलेबल है, इस वजह करके की है जो प्राइस है वो की है ज़्यादा। सो आप कि हेल्प के नाल आपां जिहड़ा है एक्सप्लेन किया वो आपां कीता मार्जिनल यूटिलिटी दी, कि हेल्प के नाल मार्जिनल यूटिलिटी दी। ठीक है जी, सो इस तरीके के नाल जिहड़ा है आपां नूं की है हेल्पफुल है। सो अज की जिहड़ी है वीडियो इस दे विच आपां जिहड़ा है आपां कर चुके हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी की इंपॉर्टेंस की गल कर चुके हैं। ठीक है, इस इंपॉर्टेंस दे विच आपां जिहड़ा है आपां कर चुके हैं कि जिहड़ा है वैरायटी ऑफ इन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ किस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪਫੁਲ है। फिर आप बेसिस ऑफ सोशलिज्म की गल की, फिर आप टैक्सेशन सिस्टम की गल की कि टैक्सेशन ਦੇ ਵਿੱਚ किस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪਫੁਲ है। दैन फिर ਜਿਹੜਾ है आप गल की है बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजम्पशन की गल की भी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ किस तरीके हैल्पफुल है। प्राइस डिटर्मिनेशन की गल की, एडवांटेज टू कंज्यूमर की गल की, डिफरेंस बिटवीन यूज वैल्यू, ठीक है, एंड वैल्यू इन एक्सचेंज की गल की है। ठीक है जी, इस तो बाद ਜਿਹੜਾ नैक्सट आप क्रिटिसिज्म करांगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। Thank you so much. Have a good day.